welcome to this video. In this video we are going to discuss the first chapter of Gulmohar book. The title of the chapter is Be Prepared and written by Ruskin Bond. In this video, first of all, we will know about the writer of the story, Mr. Ruskin Bond. After that, we will discuss on scouting, because scouting is the theme of the story. And after that, we will see the new words that will follow in the story. So children, please be with me till the end of this video, because if you will see the whole video, you will be able to have the full concept of this story. So hope you will enjoy the video. So be till the end of the video, and also like and subscribe, and also give your valuable comments. Now, dear students, we will know something about the writer of the story, Ruskin Bond, India's best loved storyteller. He has spent most of his life in Dehradun. He loves writing about the hills, his childhood, and different animals he has known. His famous works are Our Tree Still Grow in Dehra, The Room on the Roof. He now lives in Lander in the town of Mussoorie, Uttarakhand. Ruskin Bond was awarded Sahitya Akademi Award, Padam Shri and Padam Bhushan Award for his work. In this story, Ruskin Bond describes the event of his childhood. He was then a school student and a member of a school scout team. Once he went on mountains with his team, and what happened there we will learn in the story. Before we proceed to the story, we will know something about a scout. The mission of scouting is to train young people, especially students and children, through different activities like trekking, tour, trips, etc. The main purpose of the scouting is to develop young generation into a responsible citizens of a country. The person who trains scouts is called a scout master. Tuck shop, a shop inside a school. The school canteen is also known as tuck shop. Ration, a fixed quantity of food supply for people. The poor get ration from government in our country. Pounding, grinding spices into a powder or a paste. Our mother pounds masalas in the kitchen. Dekchi, a round deep pan used for cooking. Your mother cooks rice in dekchi. Nettle, a herb with leaves often added to food for the flavor. Bhujia, a dish of fried vegetables. Children like bhujia in the lunch. Tracking, following the movement of a person to find them. We often go for a tracking. Trail, marks left behind by a person or animal. The lion leaves trail behind him. Chestnut, glossy brown nuts which is eaten after frying. Romped, played with lot of joy and energy. We romped last evening. Sleeping bag, warm padded bags used to sleep, especially in camping and outing. Garnishing, decorating. The waiter garnished the dish. Provisions, food supplies. Our father brings provisions in our home. Uproar, a state of total confusion, especially in shouting. Dear students, be ready and be prepared, because the story starts now. Be prepared. That is the Boy Scout motto.
but I never seemed to be well prepared for anything, be it an exam or a journey. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि बॉय स्काउट का जो मोटो था, जो टैगलाइन था, वो था बी प्रीपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो। लेकिन आई नेवर सीम टू बी वेल प्रीपेयर्ड फॉर एनीथिंग, मैं तो कभी किसी चीज के लिए वेल प्रीपेयर्ड रहा ही नहीं, तैयार रहा ही नहीं। बीट एन एग्जाम और ए जर्नी, चाहे वो एग्जाम हो या फिर कोई जर्नी हो। सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज ए बॉय स्काउट, तो फिर मैं बॉय स्काउट के तौर पे कैसे सरवाइव करूंगा, क्योंकि मैं तो कभी वेल प्रिपेयर्ड रहता ही नहीं हूं। और स्काउट में तो कहा जाता है कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, आप हमेशा तैयार रहिए। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बॉय स्काउट में सरवाइव करना। इसीलिए रस्किन बॉन्ड कहते हैं, सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज ए बॉय स्काउट। इट सीम अ रूमर हैड गॉन अराउंड द जूनियर स्कूल दैट आई वाज अ गुड कुक। रस्किन बॉन्ड आगे कहते हैं कि जूनियर स्कूल में ये एक रूमर फैल गया कि मैं एक बहुत ही अच्छा कुक हूं। आई हैड नेवर कुक्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, मैंने कभी अपने लाइफ में कुछ कुक नहीं किया था, कुछ पकाया नहीं था। बट आई हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द टक शॉप, लेकिन मैंने अपना बहुत सारा टाइम जो था वो टक शॉप में बिताया था। टक शॉप, स्कूल में जो कैंटीन होता है उसे टक शॉप बोलते हैं, जो कुछ स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बिस्किट्स वगैरह बेचता है, तो दैट शॉप इज नोन एज द टक शॉप। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैंने अपना बहुत सारा जो टाइम था वो टक शॉप में बिताया था, मेकिंग सजेशन टू एंड इनकरेजिंग चिंपू। और टक शॉप का जो ओनर था, जिसका नाम चिंपू है, उसे मैंने बहुत सारे सजेशंस दिए थे, बहुत सारे सलाह दिए थे कि कैसे ही कैन मेक मोर एंड बेटर समोसाज, जलेबीज, टिक्कीज एंड पकौड़ाज, कि कैसे वो अच्छी तरह से समोसा बना सकता है, जलेबी बना सकता है, टिक्की बना सकता है और पकोड़ा बना सकता है। तो यहाँ पे कुछ इंडियन फूड जो हम लोग अक्सर खाते भी हैं, उसके नाम दिए गए हैं, जैसे समोसाज, जलेबीज, टिक्कीज, पकोड़ाज। और हिंदी में जैसे बोला जाता है वैसा ही यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। विद दिस क्वालिफिकेशन आई वोन अ कुकरी बैच। जब मेरा ये नाम हो गया, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जब मेरा ये नाम हो गया कि मैं एक बहुत अच्छा कुक हूं, तो मुझे एक कुकरी बैच भी मिला। आई वोन अ कुकरी बैच एंड वाज पुट इन चार्ज ऑफ आवर बॉय स्काउट ट्रूप्स सप्लाई ऑफ रेशन। और जो बॉय स्काउट का जो ट्रूप था उसके रेशंस के सप्लाई के इंचार्ज के पोस्ट पे मुझे जगह दे दी गई, मुझे इंचार्ज बना दिया गया फॉर द बॉय स्काउट ट्रूप्स सप्लाई ऑफ रेशंस का। देयर वर अबाउट 20 ऑफ अस ऑन द ट्रूप। और उस ट्रूप में, स्काउट ट्रूप में हम लोग लगभग 20 लोग थे। ड्यूरिंग द समर ब्रेक आवर स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर टुक अस ऑन ए कैंपिंग एक्सपीडिशन टू अ माउंटेन। और समर का जब ब्रेक हुआ तो हमारे जो स्काउट मास्टर थे, जो स्काउट ग्रुप के ट्रेनर थे, जो कोच थे, जिनका नाम मिस्टर ओलिवर था, टुक अस ऑन अ कैंपिंग एक्सपीडिशन टू अ माउंटेन। एक माउंटेन के एक्सपीडिशन पे, एक जर्नी पे, वहां जाकर कैंप करने पे हम लोगों को ले गए। द पर्सन वाज मिस्टर ओलिवर, आवर स्काउट मास्टर। अ फ्यू माइल्स आउटसाइड शिमला। तो जितने भी लोग स्काउट में थे, स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर के साथ शिमला के बाहर गए। द फर्स्ट नाइट वी वेर पुट टू वर्क। पहली रात को सारे बच्चों को काम दिया गया। ये काम था पीलिंग पोटैटोज, स्किनिंग ओनियंस, शेलिंग पीज एंड पाउंडिंग मसाला। आलू छीलना, पीलिंग पोटैटोज, स्किनिंग ओनियंस, प्याज छीलना, शेलिंग पीस, मटर छीलना एंड पाउंडिंग मसालाज। पाउंडिंग मीन्स मसालों को पीस करके पाउडर या पेस्ट बना लेना। When the ingredients were ready, जब ये सारे मसाले और सारी सब्जियां तैयार हो गई, I was asked what should be done with them. मुझसे ये पूछा गया, रस्किन बॉन्ड से ये पूछा गया कि इन सबों का क्या करना है। Put everything in that big डेगची। उस बड़े से डेगची में सारी चीजों को डाल दो। I ordered, रस्किन बॉन्ड ने आदेश दिया। Pour half a tin of ghee over the lot। और इन सब चीजों के ऊपर हाफ अ टिन घी डाल दो। Add some nettle leaves
उसके ऊपर कुछ नेटल लीव्स की पत्तियां डाल दो एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, और इन सारी चीजों को हाफ एन आवर, आधे घंटे तक पका लो। When this was done, everyone had a taste and agreed that the dish lacked something. जब खाना पक गया तो सबों ने उसे टेस्ट किया और सभी लोग इस बात को लेकर एग्री थे कि इस डिश में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। रस्किन बॉन्ड कहते हैं, आई सजेस्टेड मोर सॉल्ट, मैंने कहा कुछ और नमक मिला दो। बट द डिश स्टिल लैक्ड समथिंग, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमी रह गई। एड अ कप ऑफ सुगर आई ऑर्डर्ड एंड ए बोतल ऑफ टोमेटो सॉस, रस्किन बॉन्ड ने 1 कप चीनी और 1 बोतल टोमेटो सॉस मिलाने के लिए कहा। द डिश वॉज अ ग्रेट सक्सेस, जो खाना बना था वो बहुत ही अच्छा बना था और ये सारा जो प्रोसीड्योर है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। Even Mr. Oliver, who had no idea what had gone into it, enjoyed it. Mr. Oliver, जो रस्किन बॉन्ड के स्काउट मास्टर थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या क्या चीज इसमें इस खाने में मिलाया गया है, लेकिन उन्होंने भी इसे बहुत इंजॉय किया। What is this called? He asked. उन्होंने पूछा कि इसे कहते क्या हैं, इस डिश का नाम क्या है। The Bond भुजिया, said one of the boys. एक लड़के ने इस डिश का नाम दिया कि ये द बॉन्ड भुजिया है। I had earned my कुकरी बैज, और मैंने एक कुकरी बैज भी पा लिया था। The next day, Mr. Oliver told us he would teach us tracking. दूसरे दिन मिस्टर ओलिवर ने बच्चों से कहा कि वो उन्हें ट्रैकिंग सिखाएंगे। Taking a half-hour head start, he walked into the forest, leaving a trail of broken twigs, pine cones, and chestnut behind him. We were to follow the trail until we found him. Half an hour चलने के बाद he walked into the forest. हम लोग उनके साथ जंगल गए और leaving a trail of broken twigs, छोटी छोटी लकड़ियों से, पाइन कोन से और चेस्टनट से अपने पीछे रास्ते को बनाते गए। लिविंग अ ट्रेल बिहाइंड हिम, उनके पीछे। वी वेयर टू फॉलो एट द ट्रेल अंटिल वी फाउंड देम, हम लोगों को उस निशान जो ट्विग से और पाइन कोन से और चेस्टनट से जो बने थे उसको देखते हुए, उसको सर्च करते हुए मिस्टर ओलिवर को खोजना था। हम लोगों ने उन्हें खोज भी लिया। We were to follow the trail until we found him. Unfortunately, we were not very good trackers. We did follow Mr. Oliver's trail some way into the forest, but then we were distracted by a pool of clear water. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे। हम लोगों ने मिस्टर ओलिवर के ट्रेल को फॉलो किया, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो किया इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बट देन वी वेयर डिस्ट्रैक्टेड बाय अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, लेकिन हमें एक क्लियर वाटर का पूल भी मिला और हम लोगों का ध्यान जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो भटक गया। We jumped in and romped about, enjoying the sunshine. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि हम लोगों ने जो क्लियर वाटर का पूल था उसको जंप किया और रॉम्प करते हुए, खेलते हुए, इंजॉय करते हुए सनशाइन में आगे बढ़े। और लेटर फीलिंग हंग्री वी रिटर्न टू आवर कैंप साइट एंड प्रिपेयर्ड द इवनिंग मील। कुछ घंटों के बाद जब हम लोगों को भूख लगी तो हम लोग अपने कैंप साइट पे वापस आए और इवनिंग मील तैयार किया। इट वॉज बॉन्ड भुजिया अगेन बट विथ ए फ्यू वेरिएशन। फिर जो डिश बनी वो वही डिश थी जो हम लोगों ने पहले बनाई थी और जिसका नाम था बॉन्ड भुजिया, लेकिन इस बार इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ वेरिएशंस भी थे। इट वॉज ग्रोइंग डार्क एंड वी वे आर बिगिनिंग टू वरी अबाउट मिस्टर ओलिवर्स वेयरअबाउट्स व्हेन ही लिम्प्ड इनटू द कैंप। अंधेरा होने लगा और हम लोगों को अब इस बात की फिक्र हो गई, इस बात की चिंता हो गई कि मिस्टर ओलिवर कहाँ हैं जब वो
लंगड़ाते हुए कैंप में आए। He limped into the camp. He had waited for us at the far end of the forest for a couple of hours. हम लोग तो वापस आ गए थे, लेकिन मिस्टर ओलिवर जो थे वो जंगल में ही लगभग 2 घंटे तक हम लोगों का वेट करते रहे। Then he decided to return. तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वापस जाना चाहिए, but got lost in the gathering room. लेकिन शाम के अंधेरे में वो खो गए। Village folk finally helped him back to the camp. गांव के जो लोग थे, विलेज फोक, उनको कैंप तक वापस पहुंचाया। He was very angry and made us return all our badges, including my कुकरी बैज। इस सारे इंसिडेंट के बाद मिस्टर ओलिवर बहुत गुस्सा हो गए और वो जब आए तो उन्होंने सारे बच्चों से उनके जो बैजेस थे वो वापस ले लिए और मेरे भी बैज वापस ले लिए। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मेरा जो कुकरी बैज था वो भी उन्होंने वापस ले लिया। An hour later, we were all preparing to get into our sleeping bags for the night. Mr. Oliver called out, "Where is the dinner?" लगभग 1 घंटे के बाद जब सारे बच्चे अपने अपने स्लीपिंग बैग में सोने जा रहे थे, तब मिस्टर ओलिवर चिल्लाए, "Where is the dinner?" खाना कहाँ है? "We have had ours," said the boys. Said one of the boys. एक बच्चे ने कहा कि हम लोगों ने तो अपना खाना खा लिया है। Everything is finished, sir. लगभग सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है। Where is the Bond? He is the cook. Bond, get up and make an omelette. उन्होंने कहा, Where is the Bond? Bond कहाँ है? He is the cook. वही जो है जो खाना बनाता है। फिर उन्होंने ये ऑर्डर किया कि Bond, get up and make an omelette. उठो और मेरे लिए एक ऑमलेट बनाओ। I can't, sir. बॉन्ड ने कहा, मैं नहीं बना सकता। मिस्टर ओलिवर ने कहा, वाई नॉट? क्यों नहीं? यू हैव माई बैज, नॉट अलाउड टू कुक विदाउट इट। स्काउट रूल, सर। रस्किन बॉन्ड ने कहा कि मिस्टर ओलिवर, आपने हम लोगों के बैजेस को रख लिया है और बिना बैज के हम लोग खाना नहीं बना सकते, ये स्काउट का रूल है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ रूल, बट यू कैन टेक योर बैजेस, ऑल ऑफ यू। वी रिटर्न टू स्कूल टुमारो। मिस्टर ओलिवर ने कहा कि मैंने ऐसे किसी रूल के बारे में तो नहीं सुना है, लेकिन तुम लोग अपने अपने बैचेस ले सकते हो और कल हम लोग स्कूल भी लौट जाएंगे। मिस्टर ओलिवर रिटर्न टू हिज टेंट इन अ हफ, और जल्दी में मिस्टर ओलिवर अपने टेंट की तरफ चले गए। बट आई रिलेंटेड एंड मेड हिम अ ग्रैंड ऑमलेट, गार्निशिंग इट विथ डैंडिलियन लीव्स एंड अ चिली। लेकिन रस्किन बॉन्ड ये कहते हैं कि मैंने उनके लिए एक ग्रैंड ऑमलेट बनाया और उसको गार्निश किया, उसको डेकोरेट किया। हम लोग जब कभी भी रेस्टोरेंट या और कहीं फॉर्मल लंच के लिए जाते हैं तो वहाँ जो फूड आइटम्स होते हैं उनको काफी अच्छे तरह से डेकोरेट किया जाता है, तो ये टर्म में गार्निशिंग कहलाता है। तो रस्किन बॉन्ड ने उस ऑमलेट को गार्निश किया डैंडिलियन लीव से और एक चिली से। Never had such an omelette before, Mr. Oliver said. मिस्टर ओलिवर ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा ऑमलेट नहीं खाया था। Would you like another, sir? क्या आप और लेना पसंद करेंगे? Tomorrow, Bond, tomorrow. We will breakfast early tomorrow. मिस्टर ओलिवर खुश हो गए। उन्होंने कहा, कल बॉन्ड, कल खाएंगे और हम लोग कल ब्रेकफास्ट जो है वो जल्दी करेंगे। But we had to break up and our camp in the early hours of the next morning. और next morning जल्दी ही शुरुआत में ही हम लोगों ने अपने कैंप को समेट लिया, अपने कैंप को उठा लिया। A bear had wandered into our camp. एक भालू भटकते हुए हमारे कैंप में आ गया। Entered the tent where our stores were kept and created havoc with all our provisions, even rolling our big dekchi down the hillside. और वो हमारे टेंट में घुस गया और वहां घुस गया जहां हमारा स्टोर था और वहां पे उसने हैवॉक क्रिएट कर दिया, एक तमाशा बना दिया। और जहां हमारा प्रोविजंस था, हमारे फूड आइटम्स रखे हुए थे, इवन रोलिंग आवर बिगेस्ट डेगची, और हमारा जो सबसे बड़ा डेगची था उसे भी उलट दिया और वो रोल होते हुए हिल साइड पे गिर गया, नीचे गिर गया।
In the confusion and uproar that followed, the bear entered Mr. Oliver's tent. Our scoutmaster was already outside, luckily. और इसी confusion में और इसी uproar में, uproar means a great confusion in the especially in when someone shouts. तो in the confusion and uproar that followed, बियर जो था वो मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया और लकली जो हमारे स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर थे वो उस वक्त टेंट में नहीं थे एंड केम आउट इंटैंगल्ड इन हिज ड्रेसिंग गाउन और वो जो बियर था उनके जो ड्रेसिंग गाउन था उसके गाउन में वो फंस गया था, उसके बॉडी पर वो गाउन लिपट गया था. इट देन मेड ऑफ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, अ कॉमिकल साइट इन इट्स बोरोड क्लॉथ्स. और तब वो बियर जो था वो डर के मारे भागा. किधर भागा? टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ. एक कॉमिकल साइट, एक बहुत ही हंसी मजाक का सीन जो था वो क्रिएट हो गया और जब वो मिस्टर ओलिवर के क्लॉथ में लिपटा हुआ भाग रहा था. एंड दो वी वेयर अ ट्रूप ऑफ ब्रेव लिटिल स्काउट्स वी थॉट इट बेटर टू लेट द बियर कीप इट्स गॉन. और लास्ट में मिस्टर बॉन्ड बोलते हैं, मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने ये कहा है कि हम लोग जो छोटे छोटे बहादुर स्काउट्स थे, ब्रेव लिटिल स्काउट्स, हम लोगों ने सोचा कि ये अच्छा ही है कि भालू जो था वो अपना गाउन लेकर के भाग गया. होपिंग दैट यू ऑल हैव द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. विथ अनदर चैप्टर I will be here in some days. So give your valuable comments, like and subscribe the channel.